अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसमें दोनों मोहब्बत हासिल करने के लिए एक शख्स का कत्ल कर देते हैं। खातून कौन है, मुलजिम कौन है, वजह क्या है कत्ल करने की, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। क्यों नच रहे हैं सादे ब्याह ते? भाई की शादी। भाई दी शादी ते उसे भाई नूं तू कत्ल कर देता। बस दिमाग 'ਚ पता नहीं की गल आई है जान के गल। दिमाग ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਾ ਆਈ ਨਾ ਤੇਰੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? एक दूजे ने प्यार करना सा। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? एक 2-3 महीने पहले। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਚੱਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਚੱਕਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਫੂਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਫੀ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਦੋਂ ਪੈਮਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ करने गलबात करने सा। मुलजिमा साइमा की तो आपने बात सुन ली। साइमा जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मजनू है। इसके साथ वो अंधी मोहब्बत करती थी और इसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार थी और उसने अपने शोहर का कत्ल भी कर दिया। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शबाज। शबाज, ऊंची बोल। शबाज। शबाज की काम करना है? मजा। मजा ना की काम करना है? मझा चोना ना पट्ठे पुट्ठे पाना। अच्छा, तो मझा अपनियां नहीं? हाँ जी। किन्नियां मझा नहीं? ये 10-12। 10-12 मझा ने? तू तो अमीर आदमी है ते हैं? मीर कितों साल दे 10-12 मझा। 10 मार किन्ने दी कमाजे? 2-3 लाख रुपए दी होगी। ते 10 मझा किन्ने दियां हुई? पता नहीं किन्ने दी हो। पता नहीं। अच्छा, ते दूध बेचना से? अबू वेच। अच्छा, अबू बेचते हैं। ते किन्नी उम्र है तेरी? 22-23 साल है। 22-23 साल। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਚਾਚਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? हाँ चाचे दा। ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ? इको ही। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ? 4। ਤੇਰੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ। हाँ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? वो गोलियां ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? अजे बच्चे नहीं खाते। ਅੱਛਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? पैकिंग करते। ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? हाँ जी सारा काम करते। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਚਿਆ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? हाँ जी। ਹੈਂ? ਖੁਸ਼ ਸੈਂ ਫੁੱਲ? हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੈਂ? हाँ जी। ਹੈਂ? ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਂ? केड़ी वजह से खुश? ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ? भाई की शादी। ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बस दिमाग 'ਚ पता नहीं की गल आई है जान के गल। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਾ ਆਈ ਨਾ ਤੇਰੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? एक दूजे ने प्यार करना सा। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? एक 2-3 महीने पहले। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਚੱਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਚੱਕਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਫੂਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਫੀ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਦੋਂ ਪੈਮਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਨਾ, ਹੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਖਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੋ? नहीं कुछ भी नहीं। उस तो बाद मैं हवेली सो ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं ਸਨ? हवेली सोना मैं। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਹਵੇਲੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ?
ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ? ਸਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਸੀ? ਆਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ? ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ? ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਤਲ ਹੈ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਹੈ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸ। ਕੀ ਦੱਸੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਸੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਚੱਲਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ 2 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ? ਫਿਰ ਸਹੀ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨਣਾ? ਮੰਨਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਮਾਨ। सैमा ने तो तू मिल के मारा दानिश को, ऐसा नहीं है? हाँ। पुलिस सच्ची है? हाँ जी। चलें, ये था जी वो मुलजिम जिसने एतराफ़ भी किया है पुलिस की हिरासत में और पूरी दास्तान सुनाई है कि कत्ल करने की वजह क्या थी। लैला मजनू की स्टोरी और कहानी सुनाते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, कुछ और था, क्योंकि मकतूल को रात को ये नींद की गोलियां भी देते थे ताकि वो नींद से बेदार ना हो सके और फिर इनकी रात को मुलाकातें भी होती थी। कितना अरसा पहले शादी हुई सी? 9 महीने। 9 महीने हो गए सन। ते दानिश कैसा सी? बस सही सी। बस सही सी या सही सी? सही सी। कोई दुख हो रहा है कतल करवाने तो बाद या कतल करन तो बाद? हाँ जी। दुख हो रहा है? 9 महीने 8 महीने पहले शादी हुई सी हाँ जी। ते शादी तेरी मर्जी दी हुई सी हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? प्यार करने से एक दूसरे ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? बाद ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇਰੀ। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? शादी तो पहले गलबात हुई से उस तो बाद फिर राबता हो गया। सांदा के इलाके में 22 साल एक दानिश नामी शख्स का कत्ल हो जाता है। कत्ल कौन करता है, कत्ल की वजह क्या होती है, पुलिस को कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन पुलिस अपनी दिन रात मेहनत करती है और उसके बाद मुलजमान को गिरफ़्तार करती है। जब मुलजमान गिरफ़्तार होते हैं तो उसमें कातिल की जो मकतूल है उसकी कातिल उसकी अपनी ही बीवी निकलती है। साइमा इसका नाम है, जो पुलिस की हिरासत में है। इससे पूछते हैं ये कहानी क्या सुनाती है कि इसने अपने शोहर को कत्ल क्यों किया। साइमा नाम है तेरा बीबी? हाँ जी। कितनी पढ़ी हुई हैं? 8। ज़रा या उच्ची बोल। 8। 8 पढ़ी हुई हैं। कितना अरसा पहले शादी हुई सी? 9 महीने। 9 महीने हो गए सन। ते दानिश कैसा सी? बस सही सी। बस सही सी या सही सी? सही सी। सही सी। थोड़ा जा उच्ची बोल,
ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ 9 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? उस प्यार करने से एक दूसरे ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? शबाब ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇਰੀ। हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? शादी तो पहले गलबात हुई सी उस तो बाद फिर राबता हो गया ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? 2-3 महीने पहले ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? बचपन में ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? बहुत मैं तुम्हें प्यार करने से एक दूसरे ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? बस प्यार दी वजह ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਦੱਸ। बाल दवाइयाँ लिया के दिंदा सी दूध ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? शबाज का तो मेरा दोवां ਅੱਛਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। हाँ जी ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? हाँ जी ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ? ਕੀ ਸੀ ਦਵਾਈ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ? ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ- ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਦੱਸ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰਾਣਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੈਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਸੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੈਂ? ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੈਂ? ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੈਂ? ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸਰ। ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਸੀ? ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿਧਾਰਥ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾਇਆ? ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ ਸੈਂ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਫਿਰ?
ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਤੂੰ? ਦੱਸ ਨਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੇ? 3 ਭਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ। 3 ਭਾਈ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 22 ਸਾਲ। 22 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ 23-24 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹੈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। सिर्फ कत्ल करने की कोई वजह कि मोहब्बत अपनी हासिल करना चाहनी से। ਹਾਂਜੀ ये थी जी वो मुलज़मा जो एतराफ़ करती है जिसको अपनी मोहब्बत और ये मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। अपने कज़न के साथ इसकी शादी हुई और दूसरे कज़न के साथ ये मोहब्बत करती थी जिसका नाम शहबाज है और इस वक्त वो दानिश के कत्ल का मरकज़ी मुलज़िम भी है। लेकिन इसने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि ये शहबाज के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन दानिश के साथ इसकी शादी होती है और प्लान ये दोनों मिलकर बनाते हैं कि अपने रास्ते की वो दीवार जो इसके शोहर की शक्ल में है उसको हटा देंगे और फिर ये दोनों शादी कर लेंगे। रियासत अली नागरा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा पुलिस स्टेशन है हमारे साथ। पिछले दिनों एक कत्ल होता है, ब्लाइंड मर्डर होता है। क्या कत्ल की वारदात थी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की क्या कहती है? 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं जिसमें एक मकतूल की बीवी भी शामिल है। किस तरह से वारदात हुई, तफ्तीश क्या कहती है? बहुत शुक्रिया नागरा साहब। नागरा साहब बताइएगा कि ये कत्ल किस तरह से हुआ और इसमें जो खातून गिरफ्तार की है आपने वो मकतूल की बीवी है। जैसा अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी। 21/5/23 को कत्ल के वकूए की कीमावाला बाज़ार का इत्तला मिली। मैं, मेरे DSP साहब जवेद सदीक साहब, हमारी SP साहबा किला न्याज नकवी साहबा और दीगर अफसरान मौके पर पहुँचे तो देखा कि घर के अंदर एक बेड पे एक दानिश की जो डेड बॉडी पड़ी है खून में लथपथ। ठीक है। तो तमाम हालात वाक़या जब हमने चेक किए तो ये बात सामने हमारे जहन में उस वक्त ज़रूर आई है कि ये मामला किसी बाहर के आदमी का नहीं, ये किसी घर के वक्त का है। ठीक है। उसके बाद इनकी मेहमानों की गैदरिंग की वजह से हम अपने तौर पर खुफिया तौर पर मालूमात लेते रहे और उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी शवाद हमने इकट्ठे कर लिए। तो फिर मैंने इन दोनों ख़ानदानों को इंटेरोगेशन के लिए थाना में बुलवाया और तमाम को इंटेरोगेट करने के बाद इन लोगों पे हमारा मुकम्मल शक गुजरा। ठीक है। किन पे गुजरा शक? जो सैमा जो मकतूल की दानिश की बीवी, दानिश की बीवी है। ठीक है। और उसका जो कज़न है शहबाज, ठीक है। चचाजाद भाई है। ठीक है। इस पे दोनों पे हमारा मुकम्मल शक गुजरा। ठीक है। तो जब इनको इंटेरोगेशन किया तो उन्होंने तमाम हालात वाक़त मुझे बताए। ठीक है। हकीकत ये है कि ये शहबाज और सैमा दोनों आपस में प्यार करते हैं। शादी से पहले आपस का इनका प्यार था। 8-9 माह कबल इसकी दानिश के साथ शादी हुई है और उसके बाद भी इसका आपस में प्यार चलता रहा। ठीक है। उसके बाद प्यार में इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इनको जहरीली चीज़ें जो है ना वो खिलाएं, ये अपनी मौत आप ही मर जाए। ठीक है। लेकिन उन्होंने एक जहरीला महलूल बना कर दिया जो वो सामने शीशियों में पड़ा हुआ है। ये रात को सोते वक्त सैमा अपने खामद को दूध में मिला कर देती थी। ठीक है। लेकिन उसके साथ उसका मुकम्मल खात्मा ना हुआ। फिर बरोज़ हफ्ता 20 तारीख को दोपहर के टाइम इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि आज रात इनको जहरीली खाने में चीज़ें मिला कर देते हैं, जहर दे देते हैं। जहर जिसकी जिससे इसकी मौत वाक़या हो जाए। नहीं, ये तमाम ख़ानदान को नशावर चीज़ देते हैं, ये सौ जाए। ठीक है।
इन्होंने जो 81 वगैरह गोलियों के पत्ते ला कर दिए। सैमा ने रात को मीठे चावल पकाए ठीक और है। उसमें 2-3 पत्ते उसमें डाल दिए और तमाम खानदान को खिला दिए। ठीक है जी। तकरीबन 9-10 बजे के करीब इसका खामदबाद से बाहर से आता है, उसको भी ये चावल खिलाए। वो अंदर अपने बेड पे चला गया। उसके बाद शहबाज इनके पास आया और इसने इशारे में बता दिया कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। ठीक है। और प्लान के तहत इसने रात को अपना मेन दरवाज़ा था वो भी खुला रखा। ठीक है। शहबाज रात को तकरीबन 1:45 बजे के करीब आया और काफ़ी गैदरिंग है बाहर। छोटा सा सेन है, उसमें 8 चारपाइयों पे ये लोग लेटे हुए थे। पीछे कमरा है एक केला, उस कमरे में वो सोया हुआ था। ठीक है। ये अंदर गया और सैमा इसको देख रही थी जिस वक्त आया। ठीक है। ये अंदर गया, वो उसकी कमर पे ने फैर मारा, उससे आर पार हो गया, पीछे से कमर पे लगा और सीने से बाहर निकला और सामने शोकेस से जाकर गोली लगी। ठीक है। उसके बाद तकरीबन पौने घंटे के बाद दोबारा सैमा उस अंदर गया और जाकर चेक किया। उस वक्त वो सांस ले रहा था। ठीक है। उसके बाद ये सराहना है, इसने इस सराहने को उठाया और उसके नाक पे रख कर 5-10 मिनट तक उसको दबाई रखा सैमा ने। ठीक है। उसके बाद जब इनका मुकम्मल खात्मा हो गया तो फिर बाहर फिर अपनी चारपाई पे दूसरी फैमिली के साथ लेट गए। ठीक है। और वो लोग तकरीबन सुबह नशे की वजह से कुछ लोग और नशे की वजह से उन्हें फायर की आवाज़ भी नहीं पता फायर चली, की आवाज़ भी कुछ नहीं पता चली। नहीं। कितने लोग थे घर में तकरीबन? घर में वो के जो मकतूल है हाँ। उसकी 5 सिस्टरें हैं। अच्छा। और उसकी वालदा वो गूंगी है, वो भी उधर थी और अच्छा। उसका वालिद भी उधर था। और उनमें छठी इनकी बहन है, वो उन्होंने ले पालक ले रखी है। ठीक है। मकतूल की एक बहन ले पालक भी है ले पालक शहबाज की बहन है। अच्छा। और इनका आपस में इतना प्यार है, वो लोग इन पे ज़रा भी शक नहीं गुजार रहे थे कि ये ऐसा हमारे घर में घिनौना जुर्म हो सकता ठीक है। ठीक है। तो ये तमाम लातवा के सब ने आए। उसके बाद आला कत्ल इनसे बरामद किया। जो महलूल जहरीला है उसमें नीला थोथा वगैरह भी है, 81 गोलियां भी हैं और 2 शीशियों में महलूल है जो रात को पहले दूध में देती थी। ठीक है। ये मामला है। ठीक है। अच्छा रियासत साहब, आपने यकीनन एक किस ब्लाइंड मर्डर था जिसका किसी को शुबा भी नहीं था, ना कोई ऐनी शाहिद था ना गवाह था। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने ये काम जब किया तो सुबह क्या बताया कि कत्ल कौन कर गया है या कैसे हुआ? उस वक्त तो साथ तमाम ये बता रहे हैं हमें तो किसी ये बेसिकल तमाम ख़ानदान शरीफ लोग हैं। ठीक है। और एक दूसरे के साथ इतना प्यार है, एक घर ने खाना पकाया तो दूसरे ने उधर बैठ के खा लिया, ये दूसरे ने पकाया तो दूसरे लोग उधर बैठ के खा लेते ना। इतना इनका प्यार है। मकान इनके लहदा है, ठीक है। रहते साथ साथ है। साथ मकान है। ठीक है। लेकिन इतनी इनकी मोहब्बत की वजह से हमें ये परेशानी, वो लोग इन पे शक, नहीं, इन्होंने कहा क्या कि कत्ल करके कौन गया, फायर वो कौन तो मारा? इतना ही कह रहे थे कि कत्ल हो गया लेकिन हमें नहीं पता कौन किसने करा। किया। ठीक है। किसने किया। ठीक है। इसके अलावा इनके मुंह से और कोई बात हमने नहीं सुनी। ठीक है। वो यकीनन इसमें ये भी देखा गया होगा कि डकैती की कोई वारदात तो नहीं हुई कि कोई डाकू आए और लूट के चले गए और मार के चले गए, वो भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तो हालात ही ऐसे नहीं सर डकैती वाले, वो तो सीधे कत्ल वाले थे। ठीक है। घर से कोई चीज़ लेकर कोई जाता तो फिर तो कहते ना कोई दुरानी डकैती ये मामला हो गया। ठीक है। अच्छा रियासत साहब, आपने अभी एक जिक्र किया कि ये मोहब्बत की एक दास्तान है। मेरा ख्याल है ये इस तरह की मोहब्बत तो होती नहीं है जिसकी दास्तान ये बने। तो गंदगी थी एक कि ख़ातून की शादी भी हो गई, उसके बाद भी ये अपने कज़न के साथ, अपने आशना के साथ राब्ते में थी। इनका पर्पस क्या था कत्ल करने का? कत्ल करने के बाद जब वो मकतूल दुनिया से रुखसत हो गया तो क्या ये बाद में शादी करना चाहते ये थे? बाद में शादी करना। और ये बताइएगा कि आपने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि इन दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि ये रिश्तेदार हैं, तो उसके साथ ही शादी क्यों हुई? ये दोनों आपस में प्यार करते थे लेकिन उस वक्त दोनों ने अपने घर वालों को नहीं बताया। खामोश मोहब्बत थी। खुश मोहब्बत में रहे हैं। ठीक है। अगर उस वक्त ये कह देते तो हो सकता है इनकी आपस में शादी भी हो जाती। उस वक्त खामोश रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्दा डालने के बाद कि इनको पता नहीं चलेगा तो इसके बाद हम दोनों शादी कर लें। अच्छा, मकतूल जो है उसका गालिबन दानिश आप नाम बता रहे हैं? दानिश दानिश जो है मकतूल,
उसके घर में क्या रिएक्शन आया जब उन्हें पता चला कि उसकी बीवी ने ही ये सब कुछ किया है और चचाजाद भाई जो है उसने ये सब कुछ किया, क्या रिएक्शन आया? नहीं, उसके बाद जो इनकी घर की मोहब्बत मैंने पहले बताई है ना, हाँ। उसकी वजह से उनका किसी पे भी शक नहीं गुजरा। ठीक है। ये तो हमारी तफ्तीश के दौरान इंटेरोगेशन के अब उन्हें पता चल गया, अब तो वो मुकम्मल तो उनको मुद्दई उसके वालिद हैं, मुद्दई उसका उसके वालिद है। वालिद को पता चल गया कि तो वहाँ उन लोगों को पता चल गया। अब क्या वो कहते हैं कि ऐसा उनको पता था या बिल्कुल वो लाइलम थे? इस बात के मुताल्लिक वो लाइलम थे। लाइलम थे, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसमें चूँकि ये रिश्तेदार भी हैं, मुद्दई जो है वो इसका मुलज़मा का भी और मुलज़म का भी रिश्तेदार भी है, तो क्या वजह है कि वो अपना बेटा खोने के बाद भी मीडिया पे आके बात नहीं करना चाहते? कोई इज़्ज़त का खौफ है, इज़्ज़त का डर है? जी बिल्कुल इज़्ज़त का खौफ है। जो मकतूल की सिस्टर है वो सैमा के भाई के साथ उसकी शादी हुई है। अच्छा, ठीक है, वो आपस में इतने करीबी ये रिश्तेदार हैं। ठीक है। उसकी सिस्टर भी है मुद्दई की, और उसकी बेटी भी उनके भांजे के घर, जो सैमा का भाई है उसके साथ है, उसमें 3-4 बच्चे भी हैं। ठीक ये है। तो उनकी मजबूरी हो भी सकती है। ठीक है, ये मजबूरी इनकी है, इसलिए ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा, जिन्होंने इस कत्ल के मुलज़मान भी गिरफ़्तार कर लिए और तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल हुई कत्ल के लिए, आला कत्ल है, जहरीली चीज़ें हैं, वो तकिया जिसके साथ उसकी बीवी ने ही उसको मुंह पर रखकर उसका गला भी दबाया, मुंह भी दबाया, वो भी बरामद कर लिया पुलिस ने। यकीनन एक खौफनाक किस्म की वारदात थी और ना घर वालों को और ना पुलिस वालों को इस बात पे शुबा हो रहा था कि कत्ल होने वाला जो है उसकी कातिल उसकी बीवी अपनी ही हो सकती है। लेकिन फिर भी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके शवाहिद जो मिले उसमें मुलज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए। इन्वेस्टिगेशन अब तक कहती है कि जो वजह कत्ल है वो मोहब्बत है। दोनों जो कज़न भी हैं आपस में और मकतूल के भी कज़न हैं, उसकी बीवी जो है वो अपने मामू ज़ात के साथ मोहब्बत करती थी, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी ना हो सकी। घर वालों को भी नहीं पता था, लेकिन जब शादी हुई तो फिर इन्होंने कत्ल करने का घिनौना खेल एक खेला जिसमें ये कामयाब भी हुए और 5 बहनों के भाई को इन्होंने कत्ल भी कर दिया और अब ये पुलिस की हिरासत में। मुकदमा नंबर 1700/23 है, थाना सांदा में दर्ज हुआ 21 मई को, जिसमें एक लड़का दानिश, उसकी बॉडी मिली उसके घर से और उसको एक सिंगल बुलेट की इंजरी थी चेस्ट पर और बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी बेड पर। उसका वालिद सुबह नमाज के लिए उठता है रूटीन में, जब वो उठा उन्होंने देखा तो उन्होंने ना कोई बुलेट फायर की आवाज़ सुनी, ना कोई और शोर हुआ घर में। जब सब घर वाले सोए हुए थे, सिर्फ वाले जागे हुए थे, उसने देखा बेटे की लाश तो उसने 15 पे कॉल की। हमने अप्रोच किया तो बॉडी उल्टी बेड पर पड़ी हुई थी और सिंगल बुलेट थी। तो जब पता किया घर वालों से, साथ के घरों से, तो सब ने बताया कि हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ये थोड़ी हैरतनाक बात थी हमारे लिए। पहले हमारे जहन में यह आया कि शायद साइलेंसर भी आजकल लग जाता है पिस्टल वगैरह पे, शायद उससे हुआ है मर्डर। तो खैर हमने उसको प्रोब करना जब शुरू किया तो हमें उसमें यह आइडिया हुआ कि ये घर वाले रूटीन में सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन उस दिन देर से उठे। जब उसकी मकतूल की तदफीन हो गई और कुल वगैरह हो गए तो हमने फैमिली से इंटेरोगेशन शुरू की, क्योंकि हमारा थोड़ा शक इस चीज़ पे जा रहा था कि ऐसे कैसे है कि घर वालों को पता ही नहीं चला। उसकी बीवी साइमा को हमने शामिल तफ्तीश किया। थोड़ी हमें रेजिस्टेंस हुई घर वालों की तरफ से, क्योंकि जब उन्होंने पर्चा कराया वही मुद्दई थे, तो हम उन्हीं को ही अगर इंटेरोगेट करेंगे तो हमें ज़रूर इसमें मुश्किल हुई। लेकिन खैर ये हमारा बेसिक राइट है और हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं थोड़ी उसी तरफ जा रहे थे। उनको जब हमने बुलाया साइमा को तो पता चला कि शादी को कोई 8-9 महीने हुए थे और कज़न थी वो दानिश की, और दानिश 6 बहनों का इकलौता भाई था। और साइमा बचपन से अपने चचाजाद शहबाज को पसंद करती थी, जो उसी गली में ही इनका हमसाया था। तो जब शादी के बाद से भी दोनों में, दानिश में और साइमा में कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, नाचाकी थी, और साइमा का फिर भी जहन उसी तरफ ही था कि मैं शहबाज से शादी करूं।
तो ये लोग वक्तन फ़वक्तन उसको पॉइजनिंग करते रहे। कुछ हमें वहाँ उनके घर से गोलियाँ मिली नशे आवर कि उसको कभी खाने में डाल कर दे दी, लेकिन जब ये सारी अटैम्प्ट्स फेल हो गई तो हफ्ते की रात को इन्होंने ये प्लान बनाया कि पूरे घर वालों को हम कोई दवाई दे के सुला देंगे और शहबाज ने आकर फिर मर्डर करना था। और उसी तरह हुआ, साइमा ने रात को चावल बनाए मीठे गुड़ वाले और उसने उसमें वो डाल दी ढेर सारी दवाइयाँ नशे आवर, जिसकी वजह से कोई घर वाला अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह ना जाग सका। और सोने की वजह से, नशे की वजह से किसी को फायर की आवाज़ भी नहीं आई। जब सब सो गए, साइमा जागती रही, तो रात को ये आया शहबाज, इसने उसको फायर मारा और ये चला गया। तो अगले दिन जनाजे पर भी ये मौजूद था और इससे हमने पिस्टल भी रिकवर कर लिया, नशा आवर सारी अद्वियात भी रिकवर कर ली हैं और साइमा और शहबाज दोनों को हमने अरेस्ट करके फौरी विदिन 5 to 6 डेज़ हमने केस ट्रेस कर इनको हमने जेल भिजवा दिया। आज के जुर्म अंजाम में जो हमने आपको मोहब्बत की कहानी सुनाई, ऐसी मोहब्बत का अंजाम यही होता है। मुल्ज़मान अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, मुल्ज़मान तो अपनी किए की सज़ा भुगतेंगे, लेकिन दुनिया से जाने वाला 5 बहनों का भाई और उस बाप का इकलौता बेटा वापस नहीं आ सकता। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।